Good morning, students. Now we solve exercise 1.4. It is based on operation of sets. It means union, intersection, इस पे बेस्ड है. तो हम लोग देखो कैसे करेंगे. एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स. फर्स्ट सेट इज x इक्वल टू 1, 3, 5. Next set is y equal to 1, 2, 3. We have to find out the union of x and y. So we write x union y. This is the symbol of the union. So we write x union y equal to. We know that in union operation, we combine all the element of the both set and no element can be repeated. So we write first as a 1, then second element 2, 3, 5. So all element of the set x and y is combined and no element can be repeated. So this is the value of x union y. Like that you solve the remaining sum of this question. If the part, suppose we take third part of this question. So in third part it is written that x, a equal to x says that x is a natural number multiple of 3. So write down in roster form. It is written in Sadwalder form, natural number which is multiple of 3, 3, 6, 9, 12, so on. You should write down. Next set, x says that x is a natural number less than 6. So write down a natural number that is less than 6. 1, 2, 3, 4, 5. These are the natural number less than 6. So we have to find out A union B. Then you write down 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, so on. So this is our required answer. So I think the remaining part of this question you solve like this. Now we solve question number second. A equal to A comma B within brackets, B equal to within brackets A, B, C. Is A is a subset of B. A is a subset of B. All the element of A is an element of B. So A is a subset of B. तो आप लिख देंगे yes, because A comma B इसके एलिमेंट है सेट A के, और सेट B के एलिमेंट क्या है A, B, C, और सबसेट क्या A is a subset of B. क्यों हो गया? Because all the element of A is an element of B and B contain at least one more element, so it is C. That's why A is subset of B. What is A union B? इसमें एक और चीज़ पूछी गई है. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी. कंबाइन कर दो, तो ए यूनियन बी की वैल्यू को कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए बी सी. थर्ड क्वेश्चन. इफ ए एंड बी आर टू सेट्स and A is subset of B, then what is A union B? Let A equal to, suppose यही ले लेते हैं, A equal to A B हो गया, B equal to हमने क्या ले लिया? A B C. So A is subset of B. So A union B equal to आया A B C. That is equal to A B C किसके इक्वल है? B के. तो आंसर क्या हो जाएगा? A union B equal to B. Fourth, A equal to 1, 2, 3, 4 and set B equal to 3, 4, 5, 6, C equal to 5, 6, 7, 8 and D equal to 7, 8, 9, 10. Then we have to find out. We find first A union B. तो A union B कंबाइन कर दो A और B के एलिमेंट्स को. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
इसके हम 6 पार्ट को करते हैं। ए यूनियन बी यूनियन डी। ए बी और डी इन तीनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ए बी और डी, सेट ए सेट बी सेट डी के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो, कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एबव। फर्स्ट क्वेश्चन में ही अब हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में x इक्वल टू 135, y इक्वल टू 123, और उसमें हम लोगों को अब फाइंड आउट क्या करना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है? x इंटरसेक्शन y। कॉमन अगर हम लोग एलिमेंट देखें इंटरसेक्शन में तो क्या हो जाएगा? 1,3। 1,3 कैसे एलिमेंट हो जाएंगे? कॉमन दोनों में, तो इंटरसेक्शन में कॉमन लिखना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में सारे फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को आप क्या फाइंड आउट कर दोगे? इंटरसेक्शन। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन इट इज गिवन दैट सेट ए इक्वल टू 3 5 7 9 11, सेट बी इक्वल टू 7 9 11 13, C इक्वल टू 11 13 15, D इक्वल टू 15 17, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू, A और B का इंटरसेक्शन निकालोगे तो 7 9 11, 7 9 11। थर्ड, A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, A C और D इनका इंटरसेक्शन करो तो 3 5 7 9 11, A C देखो 11 13 15 और D देखो 15 17। तो सभी का इंटरसेक्शन ऐसा जो तीनों में कॉमन हो, किसमें? A में भी हो, C में भी हो, D में। तो A में देखो 11 हो रहा है, लास्ट 7 9 हो रहा है, C में 11 हो रहा है, चलो D में वो भी नहीं हो रहा, तो कुछ नहीं है, एम्प्टी ब्रेसेस लिख दो, और ये नहीं लिखना है तो 5 लिख दो। ठीक है, और कोई पार्ट करते हैं इसका? सेवेंथ पार्ट करते हैं। ये तो थर्ड पार्ट था। सेवेंथ पार्ट में देखो क्या पूछा गया। सेवेंथ में एट्थ पार्ट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो पहले आप बी यूनियन डी फाइंड आउट कर लीजिए। बी यूनियन डी देखेंगे, बी और डी की यूनियन 7 9 11 13 15 17, 7 9 11 13 15 17 बी और डी की यूनियन आ गई। अब हम लोग इसको कंबाइन कराएंगे, देन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ए के साथ इसका इंटरसेक्शन कराओ। ए है बेटा 3 5 7 9 11, और यहाँ 7 9 11 13 15 17। तो 7 9 11 ए और इसमें पूरे में कॉमन आ रहा है, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? वी हैव टू फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी। तो 7 9 11 इज अवर आंसर, बिकॉज 7 9 11 यहाँ भी है, और देखो आप 7 9 11 ए में भी है। हमें फाइंड आउट क्या करना था? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को आप सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन में गिवन है ए एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को आप कैसे लिख लेंगे? 1 2 3 सो ऑन। बी मैं सीधा रोस्टर में लिख लेता हूँ इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 सो ऑन।
सी गिवन है odd numbers 1 3 5 7 set of odd numbers, and D is a set of prime numbers. The prime numbers starting from 2 2 3 5 7 11 13 so on. After that we have to find out value of A intersection B. So A intersection B, set A has element 1 2 3, set B has element 2 4 6 8. So we find out A intersection B. A intersection B में जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 so on. It means X says that X is a set of natural numbers, set of natural numbers. ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B, सॉरी ये मैंने यूनियन फाइंड आउट कर दिया बेटा. देखो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B था, तो A इंटरसेक्शन B में जब कॉमन लेंगे तो आएगा 2 4 6 8 कॉमन आएगा, क्योंकि 2 यहाँ भी है. यहाँ आप देख रहे हो पहला कॉमन 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, देन 6 हो जाएगा, तो 2 4 6 8 आएगा. तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, X says that X is the set of even natural numbers. ठीक है, इवन नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे. तो इवन नेचुरल नंबर इसी तरह से इसके आप पार्ट्स को सॉल्व कर लेंगे. 8th क्वेश्चन देखिए. 8th का फर्स्ट पार्ट है 1 2 3 4 सेट गिवन है. दूसरा सेट है बेटा X हैज दैट X इज ए नेचुरल नंबर, और जो नेचुरल X हैज दैट X इज अ, लेट कर लेते हैं इसको सेट A, तो सेट B इज अ नेचुरल नंबर एंड this natural number is greater than or equal to 4 but less than or equal to 6. So set B, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में लिख लो. तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, क्या हो जाएगा 4 5 6. ठीक है, 4 5 6 हो जाएगा. अब हम लोगों को ये बताना है कि ये दोनों सेट ए और सेट बी क्या डिसजॉइंट हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर डिसजॉइंट सेट. तो A, B आर नॉट डिसजॉइंट सेट. बेटा मैंने मेरा वॉल्यूम 2 देखो, सेट वॉल्यूम 2 का वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने 2 सेट्स आपको और बताए हैं. एक तो ओवरलैपिंग सेट बताया है, दूसरा डिसजॉइंट सेट बताया है. ओवरलैपिंग सेट के बारे में बताया है 2 सेट्स आर सेट टू बी ओवरलैपिंग इफ़ दे हैव सम एलिमेंट्स कॉमन. और डिसजॉइंट सेट के बारे में बताया है 2 सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ़ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट. तो सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट बी के एलिमेंट है 4 5 6. अब कॉमन एलिमेंट एक 4 हो गया. अगर 4 कॉमन हो गया तो ये डिसजॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि डिसजॉइंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है. 2 सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ़ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट. अगर दोनों सेट्स के एलिमेंट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट. तो यहाँ पे ए और बी कैसे सेट हो जाएंगे, नॉट अ डिसजॉइंट सेट. और एक तरह से कहा जाए तो ये ओवरलैपिंग होगी. तो इसी तरह से आप और इसके एग्जाम्पल कर लेना. अब हम लोग डिफरेंस वाला क्वेश्चन करने वाले हैं. 9th ए दिया हुआ है 3 6 9 12 15 18 21. बी 4 8 12 16 20. C 2 4 6 8 10 12 14 16. D 5 10 15 20. फर्स्ट हम लोगों को फाइंड आउट करना है A माइनस बी. तो इसको हम लोग अगर वर्ड्स में बोले तो A नॉट B. मैंने बताया था क्या पढ़ते हैं, A नॉट B. तो आप A के एलिमेंट देख लो 3 6 9 12 15 18 21. B के एलिमेंट क्या है 4 8 12 16 20. तो B हट रहा है, तो बेटा A और B के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो भी B अपने साथ लेके जाएगा. जैसे 4 यहाँ है, क्या 4 यहाँ है,
8 यहाँ पे है, 8 है, यहाँ 12 है, तो ये 12 से ये 12 हट जाएगा। फिर 16, 20, तो जब a माइनस बी क्या आ जाएगा, a के पास अब क्या बचेगा, जब b हटेगा तो b अपने साथ किसे ले जाएगा, 12 को ले जाएगा। तो a के पास रिमेनिंग टर्म a माइनस बी के क्या होंगे, 3, 6, 9, 12 को हटा दो, 15, 18, 21। बताओ ए माइनस बी समझ में आ गया। ए माइनस बी में हम लोग क्या करते हैं कि ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा देंगे और ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिख देंगे। तो ए के रिमेनिंग एलिमेंट 3, 6, 9 और 15, 18, 21 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप और डिफरेंसेस कर लेंगे। ठीक है, 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th में x इक्वल टू है ए बी सी डी और सेट y इक्वल टू है एफ बी डी जी। एलिमेंट ये है, तो फर्स्ट निकालना है x माइनस वाई। x से y हट रहा है तो कॉमन एलिमेंट देखो b हट जाएगा, d हट जाएगा, तो रिमेनिंग एलिमेंट कौन से होंगे, a और c। a कॉमा सी यहाँ पे हम लोग राइट कर देंगे। अगर मैं इसी को y माइनस एक्स करूँ तो अब y है एफ बी डी जी और हट क्या रहा उससे x, तो x अपने साथ b और d ले जाएगा, लेकिन रिमेनिंग एलिमेंट अब काय के बचेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट बेटा अब लिखेंगे y के। तो आंसर क्या होगा, एफ जी। देखो एफ बी डी जी में से x हट रहा है, तो x हट रहा है अपने साथ क्या ले जाएगा, ले जाएगा b और d। अगर b और d ले जाएगा तो y के पास बचेगा क्या, यहाँ जो लिखा रहता है उसके एलिमेंट रिमेनिंग लिखते हैं, तो f और g बचेगा। थर्ड इसमें एक चीज़ और पूछी गई, x इंटरसेक्शन y, तो x इंटरसेक्शन y दोनों के कॉमन एलिमेंट को लिख दो, b, d। 11th क्वेश्चन करेंगे हम लोग। R is a set of real numbers, Q is a set of rational numbers. What is R minus Q? R रियल नंबर्स का सेट है, Q रैशनल नंबर्स का सेट है, तो क्या बचेगा, T। T इज अ सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स का सेट है, इरेशनल नंबर्स, तो आंसर होगा इरेशनल नंबर्स। 12th, तो 12th में क्या, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। तो फर्स्ट वाला हम लोगों का ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है 2, 3, 4, 5 और यहाँ दिया है 3, 6। क्या दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है, नहीं है, तो ट्रू। उन्होंने कहा है 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट, यस डिसजॉइंट, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है तो ये डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट, सेकेंड पार्ट, AEIOU और यहाँ दिया है ABCD और डिसजॉइंट सेट, ये भी पूछा डिसजॉइंट, तो नहीं है डिसजॉइंट, ए कॉमन हो रहा है और कोई एलिमेंट कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये क्या है, फॉल्स, ये डिसजॉइंट नहीं है, ओवरलैपिंग है। थर्ड, टू, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 10 और 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट सेट, ट्रू। देखिए कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। फोर्थ, इसी तरह से आप फोर्थ पार्ट भी कर लेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द होल सेशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन आप मैसेज कर सकते हैं ग्रुप पे, मैं वो प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बेटा लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।